नाजरीन, जंग फोरम के साथ मैं हूं इफ्तिखार कैसर। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि ईद एक दिन क्यों ना हो सकी। इस पर बातचीत करने के लिए बरतानिया भर से यहाँ पे कम्युनिटी रहनुमा और उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें आज वक्त दिया। और आज हमारे दरमियान सुलेमान गनी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने चांद रात को अपनी मस्जिद से इस्तीफ़ा दिया चूँकि इनके इख्तलाफात अपनी मस्जिद कमेटी के साथ हो गए थे। और मस्जिद कमेटी के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। और हम चाहेंगे कि इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा बात ना हो, मुख्तसर हो जो इनका इख्तलाफ है, लेकिन हम फोकस करें चांद के इशू के ऊपर। और आपने इस दफ़ा जो इस्तीफ़ा दिया उससे एक बात ये सामने आई कि उलमा इकराम बहरहाल उनकी सोच और होती है और मस्जिद कमेटी की सोच और होती है, शायद इस वजह से फैसला नहीं होता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं अंग्रेजी में बात करें, I just want to clarify one point is important that I did inform the brother Iqbal Sakrani and brother Anis that I would not lead the prayers at Balham Mosque because of the decision, which obviously I was not happy with. Now the main point was why it had to be rejected. Number one, we already knew in advance. Alhamdulillah, Allah Ta'ala has blessed us with technology. We are living in a technological age, and it has advanced so much so that we know in any given location what is a sunset time, what is a moonset time. So when we are sitting in the discussion, and it was made very clear that here in South Africa, where there was a chance of sighting only with optical aid, the Hilal was 45 minutes. Given that in the UK here, we are in London, the moon sets 16 minutes before sunset. There is no chance of sighting the Hilal in the UK. Even though we have that knowledge, yes, we want and we encourage people, go out and do the sighting, because there are people who have been claiming sightings when the moon is not even on the horizon. Even in our meeting with the Saudi scholars, that they only ask people to look for the moon 3 months, 3 times. Beginning of Ramadan, end of Ramadan, and first of Zil Hijjah. This is all. Throughout the year, it is based on the Qura calendar. We don't have an authority. We are crying for unity every year since I came into this country in 1998. How your mosque committee made the decision following Morocco or which country? Yes, so what happened? Now here we are sitting here, we said after Maghrib we went out to do the sighting, but while we are in the meeting, a phone call came in or a text message or something. That is what sparked the issue on Portugal. So this is where the confusion came. In Portugal... So you are not agreed? Now what happened? Why we did not agree with Portugal? None of the ulama have went there to verify and see what process they are adopting. As some of audience, our guests asked that we should have a decision in advance. Can we make that decision through technology, because you are talking about technology? Yes, indeed. What I would say, alhamdulillah, today, just like Imam Subki, a very great scholar, he says, don't use the astronomical calculation and the data to establish the months, but use those that are conclusive, qat'iyyun, established. This is even the scholars like Mufti Taqi, the scholars like Mufti Khalid Saifullah, scholars like Sheikh Saeed Palanpuri. These are great leading scholars. They have also said, use that which is accurate to the second conclusive astronomical data to negate those sightings which are probable. Those who are... Thank you. ये आपकी मस्जिद में ये बहुत बड़ा इशू हुआ था, आपके जनरल सेक्रेटरी? जी हाँ, क्या आपका नाम? फर्स्ट ऑफ ऑल जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरा नाम अनीस यूसुफ है। मैं बालम मस्जिद और टूटिंग इस्लामिक सेंटर का सेक्रेटरी न जाने कितने सालों से हूँ। कमेटी के अंदर वो कमेटी के अंदर में जब आप इस्तीफा दिया हुआ तो नो प्रॉब्लम, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल हम उनकी आज भी बड़ी इज्जत करते हैं और उन्होंने जैसे बताया उनके साथ साथ हम काम कर रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो कमेटी में हो वो हमारे मुलाजिम हो या हमारे इमाम हो, उनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बहुत इल्म रखते हैं। और उन्होंने हमें तो बेशक आप आए उस मीटिंग में, और उस मीटिंग में सिर्फ कमेटी के लोग नहीं थे बल्कि बाहर के भी कुछ लोग। अब ये बताइए कि जो इख्तलाफ है वो कहते हैं कि आपने पुर्तगाल से लिया। बिल्कुल हुआ ये कि ये पहली दफा ऐसा मामला हुआ है जबकि इत्तेफाकन एक चांद मुबारकबादी का फोन आया सर इकबाल सकरानी को। वो उनको कांटेक्ट करना चाहते थे, जैसे उनके वहां पे रिश्तेदार हैं और वो रिश्तेदार उनको चांद की मुबारकबादी पेश करना चाहते थे और कुछ नहीं था।
उनसे जब राब्ता नहीं हुआ तो उनके जो फर्जंद है उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कहा कि मेरे अब्बू से ज़रा फ़ोन दो, वहाँ से कोई आदमी उनसे बात करना चाहता है। दरअसल बात हुई तो वहाँ से अशफाक साहब जो हैं वो वहाँ की मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने चांद की मुबारकबादी दी। इकबाल साहब ने उनको सवाल पूछा, जनाब क्या बात है, आप चांद की मुबारकबादी देते हैं तो आप किस तरह से आप अपना फैसला सुना दें। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमारे इमाम जो सेंट्रल मस्जिद के मेन इमाम है, उन्होंने अपनी नज़रों से चांद देखा। तो पुर्तगाल की जो नाइट है वो हमारे साथ शेयर होती है, हमारा और उनका टाइम जोन एक ही है इस वक्त, राइट। वो मोरक्को से हमारे करीब है। अब वहाँ से अगर जो हमें खबर आ जाए, हालांकि ये पहली दफ़ा खबर आई हुई है, लेकिन वहाँ से अगर जो हमें खबर आ जाए तो उस खबर को फिर हम मैं आपके पास दोबारा आऊँगा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राजा जाहिद नवाज एक ब्रिटिश मुस्लिम फोरम रोयत हिलाल बोर्ड का रुकन हूँ। मैं इफ्तिखार कैसर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, पूरी दुनिया में जंग फोरम का एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, उस पर कभी भी हर्फ ना आने दे। यहाँ पर फैक्ट्स के खिलाफ बात की गई है, मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहता हूँ और जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। लिस्बन के अंदर पुर्तगाल में 7 अगस्त को चांद की जो इर्तफा है एल्टीट्यूड वो 0 डिग्री था। कभी भी मायरे फल्कियात रूहे ज़मीन पर, मैं लंदन की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड एक भी मायरे फल्कियात ये नहीं कह सकता कि जिस चांद की 0 डिग्री एल्टीट्यूड है वो चांद नजर आएगा। लिस्बन में कतन 7 तारीख चांद नजर नहीं आया, ना आ सकता था। जिन हजरात ने थर्सडे सऊदी अरेबिया की तकलीद करके ईद की है, यानी शवाल की पहली तारीख, जंग फोरम पे राजा जाहिद नवाज ब्रिटिश मुस्लिम फोरम के प्लेटफॉर्म से उन्हें चैलेंज करता है, बराए मेहरबानी उस शहर का नाम बताएं। सऊदी अरेबिया एक मुल्क है, उस शहर का, उस जगह का, उस कस्बे का नाम बताएं जहां चांद नजर आया। हम टेक्नोलॉजी की तायद करते हैं, शर्त यह है कि चांद काबिले रोयत हो, क्रेसेंट विजिबल हो। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी क्या ये बात बता सकती है कि बिल्कुल बता सकती है कि चांद काबिले रोयत कब है, when is the crescent visible। दूसरी गुजारिश, एक सेकंड, दूसरी गुजारिश ये है, बार बार यहाँ बात की गई है चांद नजर कब आएगा, चांद नजर कब आएगा। मेरे भाइयों और बहनों सुने, चांद की बात नहीं, बात क्रेसेंट की है, हिलाल की। हिलाल कब नजर आएगा? सारी सूरतें 7 तारीख पे ना सऊदिया में थी ना मराकश में थी, टेक्नोलॉजी पे मिलती है ना। 8 तारीख किसी की ईद नहीं। सॉरी, ब्रिटिश मुस्लिम फोरम रोयत हिलाल बोर्ड का कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे मौलाना बोस्तान कादरी साहब, काजी साहब, अगर दर्द है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपने बात की, तो माजरत के साथ कहना पड़ता है वो ऐसे भी वोट देते हैं जो इस्लाम के सराहतन खिलाफ होते हैं। यहाँ के कवानीन अपनी जगह, लेकिन जिनको इस्लाम मना करता है वो उसके हक, उसके खिलाफ भी वोट देते हैं। तो ये है कि पार्लियामेंट मेंबर भी आए, उलमा भी आए, बैठ कर जो है वो डिस्कस किया जाए। जहाँ तक सलमान गनी साहब हैं, उनके हम सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि ये ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। पूरी दुनिया की ऑब्जर्वेटरी कह रही है कि पुर्तगाल में चाँद देखे जाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो एक तरफ नॉलेज, और फिर कुरान कहता है शम्सु वल क़मर बिहुस्बान। ये नहीं है कि चाँद एक दिन इधर जाएगा और अगले महीने इधर जाएगा, उसके पूरे दायरे, उसकी मनाजिल, उसके सब कुछ जो है वो तय है। तो इसलिए ये इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन कमेटी मिले बैठे और गुफ्तगू करे तो इंशाल्लाह इसका हल हो जाए। तो ये मसला है सर। थैंक यू। You know, I just want to ask this question. We live on planet Earth. There's one moon on Earth, okay? So, पिछले ज़माने में तो मुझे understand है कि वो ज़राए नहीं थे. Now we live in this technological age, astronomical. We can predict when the moon is going to come out for the next 10 years. Why can't we sit down, agree on it as a united community with the ulama and with everybody else, so we just forget about this embarrassment that we go through? Rahat Sheikh, based on the fact that we have made a calendar for 30 days, on the 31st day we should say that is the day off for children. अगर ईद एक दिन पहले आ जाए, बच्चे 4 बजे घर आ जाते हैं, they can have 2 days, 1/2 day before and on the day. At least in that level we are all on the same day. बच्चों के लिए ये करना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। And I think ये चांद का मसला हमने पर्सनल कर दिया। आपने बहुत एक नई बात की है, इसलिए मैं आपकी दोबारा आऊँगा। अच्छा, ये जो मैं एक आलम से पूछना चाहता हूँ, चूँकि अभी तक मौलाना बोस्तान कादरी साहब बहुत सीनियर हमारे, और जो बातें आपने सुनी कि अभी इशू ये है कि एडवांस जो है फैसला हो सकता है कि नहीं। यहाँ उलमा ने पेशतर बातें की है, बड़ी अच्छी बात है। मैं 2 बातें, पहली बात कि मेरा ताल्लुक जो है एक
ब्रिटिश मुस्लिम फोरम से है, कन्फेडरेशन ऑफ सुन्नी मास के कम बेश 700 मसाजिद का मैं रिप्रेजेंटेटिव। पहली बात यह है, मगर अगर नहीं भी उनको वजीफे आते तो ये जब हम चाहते हैं कि बरतानिया के मुसलमान उलमा मिलकर यहाँ के हालात के मुताबिक करें तो फिर वो क्यों जाते हैं वहाँ? जरा हम आपसे ये सवाल करते हैं कि मिसाल के तो आज कितने हैं वो लोग, आज कितने लोग वो आए हैं? उनमें से नहीं, कोई भी नहीं आया। कैसे हो सकता है आपकी नजर? देखिए, मैं अर्ज करूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें साइंस ने बड़ा इल्म दिया है और इस इल्म पर हम जिसका इस्लाम ने भी इजाज़त दी है और हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर सा कि मसलन साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम ईद, रमज़ान, रोज़े रखें और फिर करीब 3 जो मुल्क है उससे खबर लेके उसको भलाक करके इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों में इत्तेहाद भी हो सकता है। अभी एक ये तीसरी बात सामने आई है कि जी उन्होंने कहा कि एक दिन हम कर लें 31वें रोज़े को और ईद खा एक दिन पहले वो पढ़ ली जाए, लेकिन सेलिब्रेट जो है एक जनरलाइज छुट्टी देखिए, ये भी हमारे उलमा ने इसमें लिखा है कि बस ईद को मुअख्खर किया जा सकता है आगे पीछे। मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, बशर्ते कि हमारे उलमा जो है बरतानिया के उलमा मिल बैठे। हम आज भी ये कहते हैं कि उलमा आए या बैठे इंशाअल्लाह। में कोई 7 से 8 मुस्लिम MPs बैठे और ये फैसला उनके हाथ में दे देना चाहिए कि हुकूमत जो है इस दिन का तयन करे और उस पे काम करें। इस पे कितने इनकी तजवीज़ पे कितने लोग मुतफिक हैं? कोई मुतफिक नहीं है। मेरी बात सुन, एक सवाल मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने अभी एक नई बात की है कि MPs को हम रिक्वेस्ट करें, जो भी हमारे 6-7 हैं कल बढ़ जाएं, कि वो सारे एक कमेटी बनाएं और हम उसमें कोई दूसरे लोग शामिल ना हों और वो एक फ़ैसला किए। इस तजवीज़ से कितने लोग मुतफिक हैं और कितने मुतफिक नहीं हैं? ठीक, चलो ठीक मिला जुला। ये दीन का मामला है, इसमें पार्लियामेंट मेंबरों का क्या मामला है? आप दीन पे चले। थैंक यू। हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि अपने माशरे को हम क्या कहते हैं डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तरीके से उनको स्प्लिट कर रहे हैं। मैं जिनके घर में गई, रोजा रखे हुआ था, उनके यहाँ ईद थी और वो जो मेरे घर आए तो मेरे घर में रोजा था। इसका बेहतरीन हल मौजूद है। नेकेड आई है हमारे पास क्या कहते हैं हाई टेक्नोलॉजी। उसके बाद भी मेरी तीसरी बात फाइनली कि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कनारी वॉफ के ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके आले लगाए जाए, वहां से 3 और 4 मौलवी जिनको हम मानते हैं उनको लिया जाए और वहां से क्लियर इसकी ट्रांसमिशन की जाए। हमारी पाकिस्तानी मुसलमान कम्युनिटी के पास इतना पैसा भी है, इतने सोर्सेज भी हैं, एंड वी कैन डू इट। वेलकम बैक। चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ। ब्रेक पर जाने से पहले उलमा इकराम पर बड़ी तनकीद की गई। अब मैं चाहूँगा कि एक आलिम हमें जवाब दे। जनाब एक मिनट, कारी साहब आप क्या कह रहे थे? मैं आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, काजी अब्दुल अजीज चिश्ती मरकजी जमात अहले सुन्नत बरतानिया से हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन की जो मैंने बात सुनी है, बहुत अदब व एहतराम के नज़दीक ख़ातीन का बहुत अदब व एहतराम है, लेकिन उन्होंने कसम उठाकर तज़हीक वाले जुमले इस्तेमाल किए हैं, उन्हें नहीं करने चाहिए। वो जज्बात में उन्होंने पहले कसम उठाई है, कसम उठाने के बाद इन्होंने आखिर जो बात की है उसमें यही कहा है कि उन उलमा को जिन पर हमें एतमाद है उन्हें दोबारा लाएं। एंड ऑफ द डे ये भी उलमा के काम छोड़ना चाहते हैं। देखकर रोज़ा रखो और चांद देखकर ईद करो। उस हवाले से हम इम्कान का ऐलान कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में मौसमियात के मुताबिक फलां दिन इम्कान है रमज़ान के आगाज़ का या ईद का, और शरई तौर पे उस दिन चांद देखने की कोशिश की जाए। आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ये आपने जितने भी फोरम किए हैं, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते, वो किसी भी मकतबा फ़िक्र के हैं। एक स्ट्रगल आप और करें, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वसादत से उन्हें भी बुलाएं, उलमाए कराम को एक बंद कमरे में बैठाकर उन्हें कहें कि खुदा और रसूल के वास्ते इस मसले को हल करें। उलमा अगर एक मरतबा हल कर दे तो मामला हल हो जाएगा। थैंक यू। मैं आता हूँ महबूब साहब। चौधरी महबूब साहब, ये मैटर जो है वो किसी एक फ़िरके का नहीं है, किसी एक कमेटी का नहीं है। इसमें अगर सभी लोग पॉलिटिकल और मजहबी उनकी एक कमेटी बनाई जाए
और वो कमेटी जो है वो आपस में बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें, वरना जनरल पब्लिक ये नहीं चाहती कि कौन सही है कोई कौन गलत है। वो ये आपकी छोटी मोटी लड़ाई नहीं चाहती, ना उनको आपको सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। आप एक फैसला करके अनाउंसमेंट कर दें, हम 21st सेंचुरी में हैं, और अगर अब भी हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर चढ़कर चांद देखें तो मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका सीरियसली इस मसले का हल ढूंढें और अपने बच्चों पर आप रहम करें। सॉरी, प्रोग्राम लंबा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, हदीस में मौजूद है, फ़ैन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलुल इद्दा सलासीन, अगर मतला जो है अबर आलूद हो तो आप 30 दिन जो है वो पूरे करें। और यहाँ जितने भी माहिरीन फ़ल्कियात हैं वो मान रहे हैं कि फ्राइडे जो है परफेक्ट ईद है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमें सोचना चाहिए और हम जो है इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए हमें, और उलमा पर एक दूसरे पर इल्ज़ामबाजी की बजाय हम जो है इसके लिए उलमा का एक बोर्ड हो। हुकूमत में जो तजवीज़ आई है कि पार्लियामेंटेरियन नहीं, पार्लियामेंट नहीं, ये उलमा का एक बोर्ड हो। बात करना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयास नियाजी है, वाइस चेयरमैन ऑफ बालो मॉस्क इंक्लूडिंग इस्लामिक सेंटर। शेख सुलेमान साहब से मैंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट किया है, मैं चूँकि थोड़ा सा हाश हो जाता हूँ, वो कहते हैं ये नहीं हो सकता। हमने मीटिंग्स की हैं वहाँ पर, मैं उन मीटिंग्स में शामिल रहा हूँ, मगर वो कहते हैं कि आप इश्यूज़ बदल जाते हैं, वहाँ यहाँ कुछ फैसला करते हैं, वहाँ नहीं करते। मगर फैसला हो सकता है अगर सेंट्रल मॉस्क के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि यूके के मुताबिक फैसला करो। सऊदी अरब से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम सऊदी अरब को क्यों इल्ज़ाम देते हैं? मुझे अफसोस होता है, इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर है, यूके के लोगों पर है, यूके के इमाम्स पर है, यूके की मॉस्क के ऊपर है, और यहाँ ही फैसला होना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर अफजल है, मैं सर्जन हूँ लंदन में। मैं एक तजवीज़ ये दूंगा कि जैसे आपने 3 यहाँ फोरम किए हैं चांद पे, तो इसी तरह अगर आप अगले साल यूँ कीजिएगा, किसी मसले को हल करने के लिए आप जो उलमाए दीन हैं उन सबको इकट्ठा करके उनका प्रोग्राम करें कि भाई हम और माहिर फल्कियात आप मिलके हम आप पे प्रोग्राम करेंगे, और जब आप ये फैसला कर रहे होंगे कि आज ईद है कि नहीं, हम उसको डायरेक्टली टेलीकास्ट कर रहे होंगे। अच्छा, और ताकि हम उसमें नहीं आते, हम ऐसे करेंगे, आप उनको लिस्ट छाप देंगे, पता चल जाएगा कौन नहीं आता। जी, सवाल सिर्फ ये है कि वहाँ अगर चांद नजर आता, इतना बड़ा मुल्क है, उनके पास सोर्सेज भी हैं। तो मैंने पिछले फोरम में भी कहा था कि वहां पर टेक्नोलॉजी है, कैमरे हैं, उनके टीवी चैनल्स हैं, वो लगाएं, साइंटिस्ट हों और कहें जनाब ये शहादतें आई हैं, ये चांद है, इस मकाम पे देखा गया। वो इतना छुपा हुआ चांद क्यों है? पूरा यूरोप परेशान है, तो हमें पूरा यूरोप परेशान है, तो हमें सऊदी अरब से अदब के साथ सफीर है उनके साथ जो है बात करनी चाहिए। समझ गई, ये इसका हल है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये दो ईदें होती रहेंगी। मैं पिछले काफ़ी अरसे से चांद निकालने और ना निकालने में पेश रहा हूँ। खबरें देते हैं जो उलमा फरमाते हैं। पहली बात तो इफ्तिखार साहब ये है कि बड़ी पॉजिटिव सूरत हाल है, कोई अफसोस वाली बात नहीं है, क्योंकि एक पत्थर अगर कोई मार देना तो वो बात तो ख़राब हो जाती है, लेकिन मजमूई तौर पर उलमा की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है, और अगले साल आप इससे और ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इसमें इंतशार पैदा करते हैं, ये शरी और दीनी मसला कम है, ये ज़ाती अनाद का और फ़िरका परस्ती का मसला ज़्यादा है। थैंक यू। इकराम खान साहब, क्या आपके पास की फार्मूला है? आप भी तजर्बाकार आदमी हैं। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि स्कूल और कॉलेज के ज़माने से ही मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है उलमाए दीन के साथ, और गुज़श्ता 50-60 बरस में जो मैंने पूरी मुस्लिम उम्मा में जो इंतशार देखा है, और वो जो इंतशार है उसकी वजह पे मैं सोचता रहा हूँ, उसका मुझे जवाब एक ही मिलता है कि हमको दीन के मामलात में उलमाए इकराम पर इन्हिसार करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी रहनुमाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नाउम्मीद है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका हल कोई नहीं होगा। थैंक यू। मैं आता हूँ। Assalamualaikum. My name is Sayyid Arshad Nadeem, Chairman of Greenfield Mosque and London Sunni Masjid Council. हमारी काउंसिल है ना माशाल्लाह से बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मॉस्क इन वेस्ट लंदन है, इंक्लूडिंग हंसलो मॉस्क। हंसलो मॉस्क में हम एक फार्मूला बनाए, बोले कि हम वी मस्ट फॉलो द यूके रॉयल ऑब्जर्व रिपोर्ट,
और अगर यहाँ चांद नजर नहीं आया तो फिर है सो हम उसको फॉलो करेंगे मोरक्को या नहीं तो साउथ अफ्रीका। हम 363 डेज यूके को फॉलो करते हैं, नमाज के टाइमिंग से उससे यूके को फॉलो करते हैं, लेकिन 2 दिन छुट्टी लेके हम दूसरी जगह जाते हैं। ये ऐसा क्यों? वी बिकम ए बिगेस्ट मॉकरी इन फ्रंट ऑफ द नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम ना प्राइम मिनिस्टर खुद बोला कि कब हम ईद की आपको मुबारकबाद देंगे। वहाँ पर डॉक्टर पाशा जो है यूएमओ के, वहाँ पर ना काफ़ी लोग 10 बिल्स ऑफ राइट में से 8 पास करे, लेकिन एक बिल्स ऑफ राइट थी जब जॉन मेजर ने पावर में था कि ईद के दिन हॉलीडे होना चाहिए यूके में, वेरी वेरी क्लोज टू गेट इट, लेकिन मिनिस्टर बोले कि कौन सी दिन देंगे आप तो 2 ईद मनाते। ये सब बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यहाँ पर ना। जो लोग थर्सडे कर रहे हैं, हमेशा थर्सडे होती है, वहाँ पर ना बिजनेस बना के रखें, इसकी वजह से हमको फाइनेंशियल। अच्छा मुख्तसर बात जी, मेरा नाम तारिक चौधरी है। तो अभी ये साहब, सॉरी आपका नाम राजा जाहिद साहब ने इनको एडवाइजर बना दे सब उलमा का, so that he has the facts जो उन्होंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आज हम आपसे सीख के जा रहे हैं। यानी आपका मतलब ये कि आपको टेक्नोलॉजी जानने वालों की जरूरत है इस मसले को हल करने के लिए। एग्जैक्टली, अगर आपको एडवाइजर बना दें तो आप उस बेसिस के ऊपर वेबसाइट से जहाँ से भी आप वो चीजें देख रहे थे, अगर आप इनको वो बता दें तो ये उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। अगले फोरम हम ईद से पहले करेंगे इंशाल्लाह, उसमें आपका मशवरा। बाद मैं ये चाहूँगा कि आप हजरात हमें ये बताएं, फार्मूला बताएं, प्रपोजल्स बताएं कि कैसे मसला हल हो सकता है। मेरा नाम काजी अब्दुल वाहिद है, मैं ब्रेडफोर्ड से हाजिर हुआ हूँ। बजाय इसके कि बांध बांध के लोगों को बुलाने के, आप उन स्पेसिफिक लोगों को बुलाएं कि जो इससे मुतल्लिक़ हैं। देखें, गुजारिश ये है कि एक हार्ट सर्जन जो है तो उसको अगर आप ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तलबा को पढ़ाने के लिए लगा दें तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। काफ़ी फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ ये जो बात उन्होंने की है ना, रीजन मस्जिद वाली, रीजन पार्क मस्जिद वाली, वो हमारी सेंटर मस्जिद है कि वहाँ जाके उनके वहाँ से जाके उनसे मतलब रब्ता किया जाए, उनको मनाया जाए, उनको किसी पॉइंट पर लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पहली तो बात यह है कि मैं समझता हूँ ये जो मसला है उलमा दीन से ही हल होना चाहिए, और सेकेंडली हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं हो सकता क्योंकि ये भी दीन के ख़िलाफ़ है। क्यों नहीं हो सकता, ये ज़रूर हो सकता है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि आपका भी इसमें रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका रोल, जो मेरी एडवाइस है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये साल में एक दफ़ा ना आए, ये आपको हर 3 महीने बाद अपडेट करें कि हमने मीटिंग की है। उस मीटिंग में से जो जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उन्होंने क्या कहा है, हाँ, क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को करीब लगाएं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो भी हो, मजहबी हो, जब इख्तिलाफ हो, लेकिन हमारा दीन तो एक है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं जो मिल नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए मेरी आपको भी एडवाइस है कि आप इनको फॉलो अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल सोल्यूशन वही है जैसे किबला मौलाना चिश्ती साहब ने फरमाया कि एक आप जैसे पाकिस्तान में कमेटी है, हम एक स्ट्रॉन्ग तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसलिक्स जो हैं और तमाम मुल्कों के जो मुसलमान हैं, सब सर जोड़ के बैठें, एक कमेटी बनाएं। वो कमेटी आजकल जदीद दौर है, साइंटिस्ट जो है वो साइंस अपने अरूज पे है, तो कोई वजह नहीं है कि हम एक ईद एडवांस में हमें पता ना हो। और ये जो मुसलमानों पे मैं समझता हूँ, ये चाहते हैं कि एडवांस में फैसला होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। थैंक यू। Assalamu alaikum. My name is Mujibur Rahman. I'm an engineer. From what I see from this forum, there's this unity amongst our Muslims, and they need to unite. There's a simple solution to this problem, and inshallah, Eid will be on one day. Thank you. आखिर में ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैं आपकी वसातत से, जंग फोरम की वसातत से आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी अगर मीटिंग बुलाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें हमारे उलमा शामिल भी होंगे और उस पर अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। चल मैं, अच्छा, ये जो तजवीज़ आई है रीजेंट्स पार्क मस्जिद वाली, क्या इस पे भी एक दफ़ा ट्राई करके देखा जा सकता है? मैं आपसे याद करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी फरमाकर इस मीटिंग के होस्ट बने और तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा कराम, जिसमें रीजेंट्स पार्क के डायरेक्टर भी शामिल हैं, उन्हें दावत दें। अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करें, वहाँ आप अरेंज करें, और तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा वहाँ मौजूद हों, वहाँ मेरे फल्कियात भी हों। तो जो भी फ़ैसला, जैसे कि मौलाना बोस्तान कादरी साहब ने कहा, कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया गया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात अहले सुन्नत ब्रिटिश फोरम वो तमाम उस फैसले की पाबंद होगा और हम वहाँ बैठकर इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले का मिला। इसका अरेंजमेंट जी, हम आपके मुआवन हैं।
इसका अभी से शुरू करें। इसका हल ये है कि रीजन पाक मॉस्क के साथ उन पे हम प्रेशर डालें कि वो उस मीटिंग में आए और दोषी लगाएं प्रेशर। बिल्कुल, ये कार्रवाई इंग्लिश में हो ताकि उनका भी नुक्ता नजर जो है ना वो देखा जाए और बरतानिया में हम फैसला करें। हम भी कोशिश करेंगे अपने तौर पे। जी है, सॉरी। अमीर ज़मान हनफी जी, अभी ये बात सामने आई है कि रीजनेट पार्क वालों से कहें वो इस पर अमल करें। आपने ये नहीं सुना कि इस दफा तो सऊदी अरब वालों ने कहा कि बुध को ईद करें, इसका क्या हाल है? वो रीजन्स पार्क को फॉलो करते हैं। हनफी साहब, एक नई बात सामने आई है। एक मुख्तलिफ जब एक मसला हल नहीं हो रहा उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्राइज करके देख लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। एक इस पे उलमा इकराम भी। हाँ, मैं आता हूँ इनसे आपको आखिर पे मैं जज़ाकल्लाह दोबारा मौका देने का। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रीजन्स पार्क मस्जिद के साथ बालम मस्जिद वालों ने और काउंसिल ऑफ मॉस्क ने बहुत कोशिश की हुई है। और एक वो जमाना था कि जब रीजन्स पार्क मस्जिद जो है वो हमारी रुयातुल कमीटी में शामिल थी। एक दफा उनको मनाने की, एक दफा ट्राई करके कोशिश की है। नहीं, उसके बाद बहुत कोशिश की है। मैं आता हूँ। मेरा नाम राजा मोहम्मद इरफाद है। बात यह है कि सारे मौलाना साहब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये करें कि जो पीछे हुआ है, जो वहाँ मक्का मज़मा में जाकर दुआ करते हैं कि वो हमें माफ़ करो, आइंदा बेहतर लो, तो हम सब इकट्ठे होकर सऊदी अरेबिया नहीं, दुनिया की कोई ताकत हो, अगर आप सब इकट्ठे होकर एक काम के लिए चलें, दैट विल बी डन। आप जंग फोरम वाले या जंग अखबार वाले या जियो न्यूज़ वाले उलमा इकराम और माहरिफ अल-कियार को बिठाएं और बिठाने के बाद जो फैसला फिर आप उस फैसले के साथ दें, उन लोगों के सामने जाहिर करें जो लोग इससे फितना फसाद फैलाते हैं, उसके साथ एग्री नहीं करते। आप 3 फोरम कर चुके, आप 10 भी करें, उसके बाद भी अगर आप साथ नहीं देंगे उन लोगों का तो वो लोग फिर वहीं पे जाएंगे। इसलिए आप सच्ची बात ये है कि आप करें, उसका पीछे भी करें आप, ताकि ये लोग उन लोगों का जो लोग दीन के साथ मुंसलिक नहीं होते वो लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे।